Okay, so poverty as a challenge. So first of all, what do you mean by poverty? We're going to see upon this chapter, and what is actually how is it seen as a challenge, and how has it been we're trying to overcome it, and what are the reforms, what are the taken, what we have did to remove the poverty from or eradicate the poverty from not just our country, from the whole entire world. We will see some statistics too over this chapter. So let's start this chapter. So the chapter tells you about overview of this chapter, as I told you. So I don't think I'm reading it. Okay. Now, so introduction. So the introduction starts with in our daily life. हम बहुत सारे people के come across like बहुत सारे लोगों के सामने आते हैं. कुछ landless laborers है, कुछ overcrowded झुग्गीज में रहते हैं, या झुग्गीज मतलब slums में रहते हैं. एंड कुछ डेली वेज वर्कर्स है, कुछ ढाबे में काम कर रहे हैं, कुछ रूरल एरियाज में बात करूँ तो कुछ रूरल हाउस होल्ड लेबर्स है, या फिर बेगर्स है, ठीक है? तो वी सी दैट एवरी फिफ्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर, so means that 270 million people live, yeah, in India, live in poverty from 2000, like in the statistics what we have got from the census 2011 and 12. This also means that India has the highest or the largest single concentration of the poor in the world, है ना? तो सबसे पहले the chapter is start with the two typical case of urban case and the rural case. I can just tell you the story. I'm not going to read it word to word. So what happens here in the urban case, that there was some Ram Sharan. He lived in Ranchi. 15,000 कमाता था, लाइक बहुत ज़्यादा इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट करके. एंड तो 6 लोगों की फैमिली थी. एक वाइफ थी, 4 बच्चे थे, ऑब्वियसली एक ही वाइफ होती है. तो 12 से 6 महीने तक के 4 बच्चे थे, है ना? और उसको अपने पेरेंट्स को भी पैसे भेजने से रहते हैं रामगढ़ पे जो रहते हैं, लाइक नियर विलेज नियर रामगढ़. So his family, land as labor, depend on Ram Sharan and his brother who lives in Hazaribagh. तो 2 भाई थे, 2 भाइयों के ऊपर जी रहे हैं उसके मम्मी-पापा. एक रूम रेंटेड रूम पे रहते हैं और लाइक आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी पे. एंड एक टेम्परेरी शाक है ब्रिक्स का और क्ले टाइल्स का. उसकी शांता देवी, उसकी वाइफ, 800 रुपये कमाती है घर पे झाड़ू पोछा करके, मेड है करके, हाउस होल्ड काम करके. और एक meager meal of dal and rice twice a day, but there is never enough for all of them. उसका बड़ा भाई सप्लीमेंट देता है, like पूरे घर को सप्लीमेंट द फैमिली इनकम, एंड अर्न्स 300. और उसके 10 साल की बच्ची बाकी भाई बहनों को संभालती है. तो कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है. They don't have had meat, like they only have old clothes. They only have new ones are bought when the old clothes become unwearable. Two pairs of handmade clothes, and shoes are a luxury. The younger kids are undernourished and they have no access to healthcare when they fall ill, obviously. Now, what is about the rural case? Something you will find common in both the cases. Lakha Singh, Meerut, Uttar Pradesh. So does not own any land. He do odd jobs for big farmers, so work is erratic. So is his income. 50 रुपए एक हार्ड दिन का, लाइक किलोग्राम. ऑफन लाइक कभी उसको वेज भी मिलती है, व्हीट और दाल और इवन वेजिटेबल्स फॉर टॉयलिंग द फार्म थ्रू आउट द डे. द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील ऑफ अ डे, मतलब दो दो वक्त की खाना भी नहीं ले पाते हैं. कच्चा हट पे रह रहे हैं. वुमेन स्पेंड द डे चॉपिंग fodder and collecting firewood in the field. His father is a tuberculosis patient जो कि मर गए because of tuberculosis. उसकी मम्मी अभी अभी सेम ही बीमारी से इस लाइफ इज स्लोली ईबिंग अवे. सेम डिजीज से हो रही है, लाइफ इज ईबिंग अवे. ऑल्दो द विलेज हैज अ प्राइमरी स्कूल, लखा मीन्स उसका बच्चा कभी नहीं गया. एंड he started earning when he was 10. New clothes happen once in a few years. Okay, तो हमने इस पूरे जो डिस्कशन था उससे हमको पता चला कि लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? सबसे बड़ी प्रॉब्लम था अनएम्प्लॉयमेंट ही थी, है ना? लैंड नहीं थे दोनों के पास, इसलिए दे वर नॉट assured, है ना? दे वर हैविंग अ बिग साइज ऑफ फैमिली. देयर वाज सो मच illiteracy, poor health, malnutrition, child labor, and there was helplessness, feeling of helplessness. Okay, तो ये दो typical cases थे
they illustrated the dimensions of poverty. They showed that poverty just does not mean hunger. What we actually think is that poverty is just hunger, but no, poverty means hunger, lack of shelter. It is also a situation in which parents are not able to send their children. Wait, just a second. Hmm. Poverty means hunger and lack of shelter. और एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं मीन्स सेंट और ठीक है एक ऐसा सिचुएशन है जब उनको एक ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही तो मतलब कंप्लीट विशियस साइकिल स्टार्ट हो जा रहा है लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी है एक लैक ऑफ रेगुलर जॉब है एक मिनिमम डिसेंट लेवल का मतलब एक क्या बोलूं मैं उसको एक वो नहीं है तुम्हारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पर हो तुम और एक पक्का एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस है तो इसे ही हम ऐसे पोवर्टी को डिफाइन करते हैं है ना पोवर्टी मीन्स हंगर lack of shelter where parents could not send their child to school could not avail the health facility sanitation and facility and clean water is a big problem and regular जॉब नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट के कंडीशन पर और सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस है तो poor people in this situation in which they're ill treated at most every place in farms factories obviously nobody would like to live in such अब ये तो वैसे बच्चों जैसी चीजें लिखा ऑब्वियस चीज है लिखी भी ऑब्वियसली ठीक है द बिगेस्ट चैलेंज बट इंडिया में ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक इंडिपेंडेंट इंडिया में जो कि millions of people out of the abject poverty Mahatma Gandhi always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become of free of human suffering. ठीक है now poverty as seen by social scientists so since poverty has many faces मतलब poverty के बहुत सारे साइड्स है social scientists बहुत वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स के साथ इसको देखते हैं है ना तो यूजुअली द इंडिकेटर्स जो कि हम एक्चुअली सोचते हैं जो हमको दिखता है कि लेवल ऑफ इनकम बहुत कम है बट कंजम्पशन उसके हिसाब से नहीं है लाइक लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन डज नॉट मैच बट नाउ पॉवर्टी को अब हम एक अदर सोशल इंडिकेटर से भी देखते हैं जैसे इलिटरेसी लेवल लैक ऑफ जनरल असिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन ये सारे इंडिकेटर्स है ना जैसे कि इलिटरेसी है तो वो शायद पॉवर्टी में रह रहा है लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस है due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. So, analysis of poverty and social exclusion and vulnerability is now becoming very common. See the boxes. So, we will see what is actually vulnerability and social exclusion. But see, so बहुत सारे फेसेट्स है तो उसके वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स से हम उसको देखते हैं कि बट जो बेसिक इंडिकेटर जो हम देखते थे कि उनका इनकम कितना है और वो ला कितना रहे हैं लेवल ऑफ इनकम कितना है और कंजम कितना कर रहे हैं है ना तो बट नाउ पॉवर्टी बहुत सारे उसको देख रहे हैं हम इलिटरेसी से देख रहे हैं हम लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस से देख रहे हैं ड्यू टू माल न्यूट्रिशन देख रहे हैं लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर देख रहे हैं लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं लैक ऑफ एक्सेस देख रहे हैं एक्सेट्रा 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 we will talk about social exclusion and vulnerability. So what do you actually mean by social exclusion? सोशल एक्सक्लूजन मतलब होता है कि तुमको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देना है ना तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से पोवर्टी इज मस्ट बी सीन इन द टर्म्स ऑफ पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद द अदर पुअर पीपल है ना तो एक ऐसा सिचुएशन बन जाता है ये देखो सबसे पहले सोशल एक्सक्लूजन एक कॉन्सिक्वेंस भी है पोवर्टी का और साथ ही साथ में एक कॉज भी है पोवर्टी का फॉर एन एग्जांपल दलित का एग्जांपल लेते हैं तो दलित को you all know ना कि दलित came from a small society were called like नीची जात you must have heard it है ना I'm not saying that they are नीची जात और I'm not promoting anything kind of thing but ऐसा हमने देखा था अब कि सभी ने सुना ही होगा बेसिकली तो हाँ तो ये जो था ये लोग इनको सोशली एक्सक्लूड किया गया
है कि नहीं? तो अब तुमने कभी अगर सोशली एक्सक्लूड कर देगा तब उसके बाद तुमने इनको कभी थोड़ी ना देखा होगा कि ये कहीं पे जाके बड़े पोजीशन पर है, नहीं ना। तो यही यही है कि ये ज्यादा क्लिक के कॉज भी है ना, कि पॉवर्टी का कॉज भी है कि इनको सोशली एक्सक्लूड कर दिया गया, इसीलिए बाहर हो गए। ठीक है, इसीलिए ये पॉवर्टी में धकेले गए। ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर ऊंची जात नीची जात वाली बातें तो सुनी ही होगी, सभी नीचे जात वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, लैंडलेस लेबर, है ना। अब सभी ने उसका नाम सुना होगा क्या, अब ये कॉन्सिक्वेंस, ये तो हो गया, ये कैसे ये वो कैसे है, ये कॉज कैसे है, अब कॉन्सिक्वेंस कैसे हो सकता है ना। कि अब देखो, जब तुम पॉवर्टी पे रहना चाहो, तो अगर तुम पॉवर्टी पे रह रहे हो, तुम माल न्यूट्रिशन हो, तुम्हारा अनहाइजीनिक हो, तो फिर तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा, कोई रहना चाहेगा क्या? नहीं ना, like they would be away from you, isn't it? है ना, you will get socially excluded। हाँ, तो इसीलिए तुम हो सकते हो कि तुम्हारी इक्वल अपॉर्चुनिटी से एक्सक्लूड कर दो, है ना। तो एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉयिंग सोशल इक्वालिटी फॉर ऑफ बेटर पीपल इन बेटर सराउंडिंग। तो सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ अ कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस, एज आई टोल्ड यू। सो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल या ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अदर्स एंजॉय, है ना। Example is the working of caste system in India, which people belonging to certain castes are excluded from equal opportunities. As I told you, है ना। ठीक है, तो सोशल एक्सक्लूजन के बारे में इतना ही। अब देखते हैं वल्नरेबिलिटी के बारे में। तो व्हाट डू यू मीन बाय वल्नरेबिलिटी? तो वल्नरेबिलिटी इज समथिंग कि एक ऐसा मेजर है कि कौन सा कम्युनिटी या कौन सा पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा इजीली पॉवर्टी में धकेला जा सकता है, या फिर इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर आ सकता है, उनको पॉवर्टी मिल सकती है ना। तो उसी को हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि हाँ, अगेन कमिंग टू बैक टू दिस एग्जांपल, है ना। तो अगर तो दलित वर अ बैकवर्ड कास्ट, so they were socially excluded, they led to the poverty. So can't I say that the person who has came from a Dalit family is more vulnerable, or like is more in a risk to get poverty, or is in a more of risk to get a less sanitation facility, could not send the child to the school, could not get the treatment when got sick, है ना। एक रेगुलर जॉब ना मिले, एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस आ जाए, हंगर में रहे, शेल्टर ना मिले, तो कांट आई से दैट दिस वुड बी वल्नरेबल, है ना। तो एक वल्नरेबिलिटी एक ऐसा मेजर है जो डिस्क्राइब करता है कि ग्रेटर प्रोबेबिलिटी है एक सर्टेन कम्युनिटी की या किसी इंडिविजुअल की, है ना। इंडिविजुअल में हम देख लो, विडोज के बारे में देख लो, इसी बुक में दे विडोज सच एज विडोज, मतलब जिनके हस्बैंड्स नहीं रहे, दे गॉट डेड ड्यू टू सम ऑफ द इंसिडेंट्स, राइट। सो सो हाँ, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल हुए ना, क्योंकि दे डोंट शी डोंट हैव नाउ आई थिंक अ वर्किंग क्लास, शी कुड वर्क, बट इफ इट्स हर चॉइस, that is not a good example actually, I think, to explain it. And physically handicapped person, है ना, so no one will like to give them employment, would they? They wouldn't be. So they will, that would lead to again a vicious cycle, or leading to hunger, or hence a sense of helplessness, could not afford treatment. That could lead to that again, like lead to poverty, I could say, or becoming or remaining poor in coming year. So vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of asset, education, health, job opportunity, है ना। तो वर्नेबिलिटी से इससे भी डिटरमाइन की जा सकती है कि कितने ऑप्शंस अवेलेबल है डिफरेंट कम्युनिटीज को, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब अपॉर्चुनिटीज। फर्दर उसको और एनालाइज करा जाए ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क दिस ग्रुप फेस एट द टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, है ना। तो अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो ये कम्युनिटी क्या रह पाएगी, ये सेक्शन रह पाएगा, पॉपुलेशन का सह पाएगा। अर्थक्वेक आ गया समझ लो, या फिर और थोड़ा सा रियलिस्टिक एज पर इंडिया लेते हैं, तो उड़ीसा में समझ लो 1999 की बात कर रहा हूँ मैं,
इज़ामा करके एक विलेज के बारे में। तो वहाँ पे जो विलेज था, विलेज है समझ लो एक, तो वो जो विलेज में जो लोग रह रहे हैं, जो कि एक्चुअली लैंडलेस लेबर्स हैं, तो क्या वो उसे सस्टेन कर पाएँगे क्या उस फ्लड को, या फिर हाँ फ्लडी को, तो कर पाए क्या? नहीं ना। So I could say that they were living in poverty. So additional analysis, हाँ, so in fact vulnerability describes the greater probability, एक जिसका probability है ज्यादा adversely इफेक्ट होने की, जब बैड टाइम आएगा, जब बुरा समय आएगा तो ज्यादा कौन इफेक्ट होगा, उसी को हम वल्नरेबिलिटी भी कह सकते हैं। वो एक फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, या एक फॉल इन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स ही क्यों ना हो, तो जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो गया ना उसके कारण, वो ज्यादा वल्नरेबल है, पॉवर्टी, है ना। तो यही होता है। अब देख लो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन कुछ नहीं होता, एक ऐसी ऐसे रेखा होती है, ऊपर होते हैं तुम्हारे, सॉरी मैं ये पे लिख रहा था गलती से, अरे हम्म, अब पी एल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, एंड बी पी एल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो so at the center of the discussion on the poverty is the concept of poverty line, है ना। So a common method to measure a poverty is based on the income or the consumption levels, है ना। तो जो बेसिक मेथड जो हम यूज करते हैं कि कितना इंसान कमा रहा है और कितना कंजम्पशन लेवल और कितना कंजम कर रहा है ना। पोवर्टी लाइन के बारे में हमने थोड़ा सा क्लास सिक्स में आई थिंक थोड़ी सी बात करी थी। तो कॉमन तो ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो पॉवर्टी ज़्यादा कम वल्नरेबल है, या जब फिर जो भी नहीं रह रहा है पॉवर्टी में, वो नीचे है बीपीएल, और जो पॉवर्टी से ऊपर है, अब पॉवर्टी से आगे बढ़ चुका है, पॉवर्टी में नहीं जी रहा है, वो है एपीएल, ठीक है। तो वही होता है एपीएल एंड बीपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो अब हम मेजर कैसे करें कौन है एपीएल कौन है बीपीएल। एक कॉमन मेथड जो होता है मेजर करने का इज बेस्ड ऑन द इनकम और द कंजम्पशन लेवल, है ना, कि इज बेस्ड ऑन द इनकम और द कंजम्पशन लेवल, ठीक है। Person is considered poor if his or her income or consumption levels fall below a given minimum level necessary to fulfill the basic needs, ठीक है। तो एक पर्सन को पुअर कब बोला जाता है, जब उसका या उसकी इनकम कंजम्पशन लेवल से बहुत ज़्यादा मिनिमम लेवल पर उतर कर आ जाए। नेसेसरी लेवल necessary to fulfill the basic need. What is necessary to satisfy the basic needs are different in different times in different countries, है ना। तो क्या मिनिमम लेवल है, अ पर्सन इज कंसिडर्ड जब वो एक मिनिमम लेवल का जो कंजम्पशन है वो उसके भी नीचे कर रहा है ना, उसकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने से भी नीचे कर रहा है। तो दैट सो व्हाट इज, तो इसको जो सैटिस्फाई करने के लिए जो नेसेसरी है इज द बेसिक नीड इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम। तो अब टाइम के हिसाब से पहले मेरा पहले किसी भी इंसान की बेसिक नीड क्या थी, रोटी कपड़ा खाना, रोटी कपड़ा खाना, छत, है ना, सर के ऊपर। बट अभी डिफरेंट हो गई हो, शायद शायद नहीं हो ही गई है। अभी तुमको चाहिए रोटी कपड़ा मकान छत, और एक चाहिए एक मोबाइल। अब ऑनलाइन क्लास कैसे करोगे? तो ये हो गई ना। तो पॉवर्टी लाइन शायद चेंज हो गई। हर कंट्री का भी डिफरेंट हो सकता है। मेरी कंट्री के लिए रोटी कपड़ा और रोटी कपड़ा छत है। बट अब हो सकता है कि किसी और कंट्री में कुछ और भी हो, क्योंकि वहाँ की कुछ और इकोनॉमी है या बहुत सारे कंडीशंस हैं, है ना। तो और हर कंट्री कैसी इमेजिनरी लाइन बनाती है, अ, वो हर कंट्री एक इमेजिनरी लाइन बनाती है जो कि उसके एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट, अभी वो कितना डेवलप कर चुके हैं उसके बेसिस पे, और एंड इट एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म। फॉर एन एग्जांपल, having a car in United States is the considered, not having a car in USA is considered, you are considered to be poor, but in India owning a car is a luxury. So that is what is the difference ना, हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है।
poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, and education and medical requirement are determined for subsistence. है ना? तो these physical quantities are multiplied by their price in rupees, है ना? तो क्या जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके प्राइसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटीज से फिजिकल क्वांटिटीज are multiplied by the prices in rupees. So the present formula for the requirement will estimating the poverty is based on the desired calorie requirement कि उसको खाना मिल रहा है कि नहीं, तो कितनी और मिल रहा है तो वो अंडर नरिश तो नहीं है, तो like उसको एक desired calorie requirement है कि नहीं. So food items such as cereals, pulses, sugar, vegetables, milk, oil, sugar together provide these needed calories. The calorie needs, हाँ अब एज सिक्स टाइप ऑफ वर्क में भी डिपेंड करता है, बट एक मैं एवरेज जो ले सकता हूँ वो ये होती है कि 2400 कैलोरीज पर पर्सन डे इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन डे इन अर्बन एरिया. तो और रूरल एरियाज पे इसको हाई रखेंगे क्योंकि रूरल एरियाज पे ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है और अर्बन एरिया पे काम करना पड़ता है. So is to be higher. ठीक है, the monetary expenditure of per capita for buying these calorie requirement in terms of food is revised periodically taking into consideration the prices in rupees. हाँ, तो जो होती है वो भी जो एक्सपेंडिचर होती है वो बढ़ती है या घटती है, बढ़ती ही है एक्चुअली क्योंकि प्राइस कोई भी नहीं घटते, तो घटते तो कितना अच्छा होता है वैसे, बट तब भी तो needed for buying these calorie requirement is revised. आई विल लाइक प्राइसेस पे ये तो फिक्स रहेंगे कैलोरीज, बट प्राइसेस डिफरेंट होती है. बट 2011 ऑन द कैलकुलेशन द ईयर 2011-12 the poverty line for the person was fixed 816 per month for rural areas and 1000 for urban areas. अब नीदर की उसका नीदर अर्बन एरियाज में जो कैलोरी रिक्वायरमेंट थी वो कम थी, बट प्राइस बट उसमें एक्सपेंडिचर इसमें ज़्यादा है अर्बन एरिया में, इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस लाइक फिक्स है बिकॉज प्रोडक्शन अर्बन सेंटर्स आर लिटिल प्राइसी देन कंपेयर टू रूरल एरियाज, है ना? सो so in this way that 2011 a family of five, so by calculations of पांच लोगों के फाइव मेंबर्स लिविंग इन रूरल एरियाज एंड अर्निंग लेस देन अबाउट 4000, लाइक पांच लोग रह रहे हैं एक फैमिली में और 4080 रुपए कमा रहे हैं, उससे कम कमा रहे हैं, तो वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है. अब सिमिलर फैमिली पांच लोगों की सेम 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 एज सब सब सेम, तो 5000 पर महीने कमाने चाहिए टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट. The poverty line is estimated periodically, normally every 5 years by conducting sample surveys. तो ये जो काली poverty line हर periodically estimate की जाती है और normally every 5 years by conducting sample surveys, and these surveys are carried out by National Sample Survey Organization NSSO. And however, for making comparisons between developing countries, many international, but लाइक डेवलपिंग कंट्रीज में वो करने के लिए कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड पॉवर्टी लाइन फिक्स करी गई है $1.9 पर पर्सन पर डे. इसके बारे में हम पढ़ेंगे ग्लोबल पॉवर्टी रेशियोज में, बट हाँ ठीक है, $1.9 पर पर्सन पर डे, तो मतलब इसका कुछ होता है तुम्हारा 150-140 रुपीज समथिंग तुमको हर दिन कमाना चाहिए, बट ऐसा इंडिया में नहीं होता क्योंकि अब देखो ना वो पूरे एक वर्ल्ड का एस्टिमेट ले रहे हैं. तो अब वर्ल्ड में जैसे मैंने यहाँ पे यूएस का एग्जांपल लिखा हुआ है, तो उसके कंपैरिजन में तुम सोच लो ना कि कितना ज़्यादा इनडिफरेंशिएट है ये. बट ठीक है, एक बस उसको कंपैरिजन करने के लिए, बट पॉवर्टी एस्टिमेशन जो हम करते हैं वही बेस्ट होता है हमारे कंट्री के लिए. ठीक है, तो टेबल 3.1, दिस इज अ टेबल 3.1. देयर हैज़ बीन सब्सटैंस बहुत डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी रेशियो. अगर मैं रेशियोज देखूँ तो हमारे इंडिया में बहुत कम हुआ है. तुम देख सकते हो 1993 1994 45% था, बट 2011-12 पे 22% हो गया, है ना? सो टू थर्टी फिर 2004 एंड 5 में 37.2 हुआ, फिर 22 पे और फिर 2011-12 पे 22 पर आ गए हम. और अगर मैं उसी को अगर वैल्यूज के साथ देखूँ इन मिलियन, तो 270 मिलियन पर आ गए थे हम कब 2011 एंड 12 पे, और 1993 पे जब हम 404 पे थे, तो अच्छी बात है हम और रिड्यूस हो गए उससे.
है ना? तो the trend continues, people below may come down to less than 20% in next few years, और कम जाने तो चाहिए। अब देखते हैं, अभी एक सेंसस होना चाहिए था बट हुआ नहीं बिकॉज ऑफ मेनी कंडीशन, तो इसीलिए ये 2011 एंड 12 का दिया हुआ है इसमें, बट वो बहुत ज़्यादा पुराना वो है, वैल्यू है इसीलिए। तो आई डोंट प्रेफर दिस वैल्यू एक्चुअली, क्योंकि अभी तक 10 साल में कितना सब कुछ चेंज हो सकता है शायद कम भी गए होंगे हम। ठीक है, so the number of decline from 407, ठीक है, तो यही पूरा टेबल एक्सप्लेन करा हुआ पूरे पैराग्राफ में। now we will talk about the vulnerable groups, so we have seen what is actually vulnerability, है ना? Now who are the vulnerable groups, actually what I was talking about that time. So the proportion of people living below poverty line is not same for every social group, है ना? ऐसा हो सकता है कि जस्ट गिविंग एन एग्जांपल्स फॉर इन एग्जांपल नहीं देते हैं, समझ लो एक्स कम्युनिटी थी, इज उस इस एक्स कम्युनिटी थी, तो उस कम्युनिटी पे ऐसा हो सकता है कि सिर्फ तुम्हें रिच पीपल ही मिले, तो उनकी पॉवर्टी रेशियो कम होगी। इसीलिए भी हो सकती है क्योंकि उनके बैकग्राउंड ही ऐसा था, तो ऐसा हो सकता है। या फिर एक समझ लो शेड्यूल कास्ट ही ले लो, शेड्यूल कास्ट को मैंने देखा तो मैंने रियलाइज करा कि वो बहुत ज़्यादा कम में थे, बहुत कम उनकी लाइक ज़्यादा पॉवर्टी रेशियो थी, मतलब कम रिच थे, ज़्यादा पॉवर्टी रेशियो थे। तो हर ग्रुप के लिए, इकोनॉमिक कैटेगरी के लिए इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में बहुत डिफरेंस है। हर सोशल ग्रुप सेम नहीं है, डिफरेंस है सब में। ठीक है, तो सोशल ग्रुप विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउसहोल्ड्स, है ना? तो एस सी एस टी वाले सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। सिमिलरली अगर मैं इकोनॉमिक ग्रुप देखूँ तो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप आर द वल्नरेबल एग्रीकल्चरल लेबर हाउसहोल्ड एंड द अर्बन यूजुअल कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड। तो एग्रीकल्चर लाइक लैंडलेस लेबर्स एंड जिनके पास लैंड नहीं है, किसी और के पास काम करते हैं एज अ wage worker. You have seen this in village in the village of Palampur. Again, graph 3.1 shows the percentage of poor people in all these groups. So for all the groups in India 22, इस हाँ, तो फिर वापस स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन करा ये कि इंडिया में इन टोटल 22% है, ये देख सकते हो। 43 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू एस टीज और लाइक ठीक है, इसको ऐसे भी ले लेते हैं, हर 100 पीपल में से 43 पीपल एसटी के लाइक अपनी बेसिक नीड को नहीं पूरा कर पाते हैं। तो वैसे ही 34% ऑफ कैजुअल फार्म लेबरर्स both are 34 only, so able to meet their basic needs, है ना? um, हाँ, और 29% of SCs are also poor, and the double disadvantage of being landless casual labor in the so the disadvantage of being landless casual wage labor household in the socially disadvantaged social group of the SC or ST highlights the seriousness of the problem. तो कुछ recent studies है, वो ये भी बताती है कि एक्सेप्ट एसटी हाउसहोल्ड्स, ऑल द थ्री ग्रुप मतलब एससी रूरल एग्रीकल्चर लेबरर्स, कैजुअल अर्बन लेबरर्स, इन सब में डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी में सिंस 1990s, बट एसटीज में हमें नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम पेड़ काट रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे हैं, और वो जब ठीक है, एसटीज होते हैं क्या, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं ना। तो जब कोई ट्राइब जहाँ अपने कर्ब लाइक जो उनका लाइफ होता है, एक्चुअल लाइफ ट्राइब्स का, उसमें से जब शिफ्ट करते हैं तो एसटी के कम्युनिटी पर आते हैं ना। ठीक है, तो इसीलिए पेड़ कटते जा रहे हैं, एसटीज बढ़ते जा रहे हैं, कि वैल्यू बढ़ते जा रही है। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दी सोशल ग्रुप्स, हाँ अब ये भी देखो कि एक फैमिली के अंदर ही बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, इनकम की भी और वल्नरेबिलिटी की भी, है ना? एज इट इज इन द बुक, इन पुअर फैमिलीज ऑल सफर बट मोर सफर देन सम सफर मोर देन अदर्स, है ना? इन सम केसेस वुमेन, elderly people and female infants are denied to equal access to resources available to the family. I could not explain this part. ठीक है, story of हाँ, we saw in this actually story, we saw that how
how this the male son or the working man was taken as to be more as important and more not denied to any facility, and even this boy was given a more of advantage other than all of them. ठीक है? um yeah, that is why I'm saying I could not explain that. जिसको समझना है, जो समझना है समझ लो. ठीक है. Now, uh, let's talk about interstate disparities. तो मतलब हमारे इंडिया पे तो स्टेट के बीच में भी बहुत ज़्यादा disparities. ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे across the country there is same kind of poverty ratio. There is difference, है ना? तो in this complete thing you will always hear that Bihar, Odisha, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Assam, असम में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, और केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल have declined in poverty. So what is interstate disparity? The poverty in India also has other aspect or dimension. Not equal in every state. Although state level has witnessed a secular decline from the level of early 70s, the success rate of reducing poverty from state to state. Recent estimates, while the HCR was 21.9% in 11 and 12, states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar, and Odisha had above all the India poverty levels. ठीक है? तो एक बार ये ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ से बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी. सो यू ऑलवेज सी कि जो बिहार है, जो उड़ीसा है, बिहार है, उड़ीसा है, ये दोनों जो है वो सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट स्टेट दिखेंगे आपको हमेशा, एंड विथ 33.7 एंड 32.6, है ना? So respectively, so along with rural poverty, urban poverty is also high in Odisha, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश. तो देख, दोनों में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है. और ये कुछ स्टेट्स है, असम है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है. तो इन सब में सबसे हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो आई कुड सी. ठीक है? नाउ we will see the other state which have declined in poverty and having a very high success rate in declining the poverty. So in decline poverty, so Kerala, you could see here only Kerala and Himachal Pradesh. तो इसमें नहीं है. Andhra Pradesh, and Tamil Nadu, and Tamil Nadu, hmm, Tamil Nadu, and Gujarat and West Bengal. Gujarat and West Bengal have seen a significant. Here is West Bengal. So they have seen a significant decline in poverty, and each state have a story behind it. So you could see Punjab, here is Haryana, and here is Punjab. So these two states had a very much decline in poverty because of the Green Revolution, or whatever kind of this. They saw a revolution in their like what in agricultural side. They saw a very high agricultural rate because of green revolution worked very well out there. So that is why you could see a declining poverty over there, है ना? केरला ने बहुत अच्छे से लिटरेसी पे, लाइक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में अच्छे से ध्यान दिया, इसीलिए वो आगे बढ़ गया. And you have seen it is the least illiterate in this entire country, है ना? So West Bengal land reform measures had helped in reducing poverty. Andhra Pradesh and Tamil Nadu public distribution of food grains could have been responsible for the improvement. है ना? PDS system of food. PDS system, the public distribution system, had helped them. Now we will see about the global poverty scenario. ठीक है. Yeah, there is global poverty scenario. Huh. The global poverty scenario, the proportion of people ठीक है. तो ये वाला पार्ट क्लियर है. अभी ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, एंड देन वी विल सी द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी एंड द एंटी पॉवर्टी मेजर्स.
ठीक है, and then the chapter will end. No challenges ahead. ठीक है. Now, so what is actually global poverty scenario? In this topic, we will actually learn the proportion of people living in poverty in the entire globe. ठीक है. So as we discussed in the previous part, that the proportion of people in developing countries living in extreme economic poverty defined by the World Bank as living on less than $1.9 per day. है ना? तो I told you the poverty line made by the World Bank to see the poverty ratio is $1.9. ठीक है, मतलब 150 रुपए तुम्हारा एक दिन का, तो अगर मैं ऐसे निकालूं तो फिर हमारे कंट्री में जो पॉवर्टी लाइन है वो आई थिंक आस-पास ही है ना, कि क्योंकि लाइक दिस कॉस्ट समथिंग लाइक $1.9 इज समथिंग लाइक 115 एंड 150 एंड आर इज दैट 1000 per person. No, 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 no. It is very much upper nature. So like we have a very less poverty line than they have a very high poverty line. So but still they are just comparing it, but this is also the reason that whenever you will see in the like global partner, India would always be very much high, but it is actually that but whenever you will see our basis, our point of view, we will see our reports obviously, so we will be like less in that point that time. So that is why there has been a difference. um so has fallen from 35% 1990 to 10.6% in 2030. So also there has been a substantial reduction in global poverty with बहुत ज़्यादा regional differences थे, but तब भी there has been a reduction in poverty. Poverty declined substantially in China and South Asian countries. We are South Asian country, तो हमारे में भी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण बहुत अच्छे से हमको रिडक्शन मिला. वी लर्न, वी सॉ ओवर इन दिस ग्राफ, है ना, that how it came from 45 to 22%. And also there has been a reduction in poverty in China, and China is a very good example. तो तुम देख सकते हो 1981 में उसके पास 88.3% जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, है ना? और 14.7, बट वो आगे 14% 2008 में और फिर 0.6% इन 2019, तो कितना अच्छा ग्रोथ दिखा उसको चाइना में. और ये क्यों दिखा? बिकॉज ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. So the countries like South Asia, India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal also see the decline has also been rapid. So 34% 2005 to 15.2% 2014. With decline in percentage of the poor, the number of poor has been declined significantly. 51.04 million in 2005 to 247.5 million in 2013. Because of different poverty line definition, poverty in India has also shown higher than the national estimates, as I told you. Okay, so in sub-Saharan African poverty, in fact, declined from 51% in 2005 to 40.2% in 2018. Sub-Saharan Africa मतलब Nigeria and that part, complete that part. ठीक है? So declined from 51% to 40%. In Latin America, the ratio of poverty also declined from 10% to 4% in 10% 2005 and 4% 2018. So poverty has also resurfaced in some of the resurfaced. What do you mean by resurfaced over here? Has increased, है ना? Resurfaced की exact meaning I think increased ही होना चाहिए. Hmm. Has resurfaced in country it was where officially it was non-existing. I was correct. The table 3.2 shows the proportion of people living under poverty in different countries as defined by the International Poverty Line, means population below $1.9. So, a new Sustainable Development Goal by United Nations proposes ending poverty of all type by 2030. तो लाइक 2030 तक खत्म करने का ऐसा वो रखा है SDG गोल्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में.
सुने होंगे कुछ 13 गोल्स हैं। सो उसमें बहुत सारे गोल्स आते हैं, जैसे कि सेफर एनवायरनमेंट टू safer environment to live, and good environment, good breathing, and something like that. There are say something, है ना? So causes of poverty. So what are causes of poverty? तो सबसे पहले, like, there has been a wide number of causes for widespread of poverty in India. ठीक है? तो वन हिस्टोरिकल रीडर, तो सबसे पहले तो सबसे पहला जो कॉज है पॉवर्टी का, वो है हमारा हिस्टोरिकल रीजन। तो हुआ क्या कॉलोनियल पीरियड में, मतलब ब्रिटिश पीरियड में, जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ था वो बहुत कम हो गया था। वो क्यों कम हो गया था? ब्रिटिश लॉज़ के कारण। अब ब्रिटिश लॉज़ क्या थे, जैसे कि अब समझ लो ब्लू रिबेलियन के टाइम तुम लोग ने लास्ट ईयर ही पढ़ा है, ब्लू रिबेलियन 8th में ही। तो ब्लू रिबेलियन में हमने देखा था कि कैसे वो लॉज़ बना रहा था, फॉरेस्ट कैसे तो फॉरेस्ट लॉज़ बनाया था, ये सब बहुत से लॉज़ बनाए थे ना, तो जो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को तो बहुत कम कर दिया। ठीक है? और ये तो था एक हिस्टोरिक रीज़न। अब दूसरा ये भी था, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई तो हुई, साथ में पॉपुलेशन भी इतनी बढ़ गई कि अब हम पॉपुलेशन कंट्रोल करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। प्लस उस पॉपुलेशन को अभी हमें सहना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट इंडिया को सहना पड़ेगा, है ना? Is a low level of economic development under the British and colonial administration, and the policies the colonial government ruined traditional handicrafts, as I told, and discouraged development of industries like textile. The low rate of growth persisted until the 1980s. This resulted in less job opportunities and low growth rate of incomes, है ना? एज़ आई टोल्ड यू, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो गई और यही लाइक डेवलपमेंट कम हुआ, इसी के कारण हमें लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, लो ग्रोथ रेट मिला इनकम पे, तो व्हिच लेड टू समवेयर टू पॉवर्टी, है ना? सो दिस वाज़ अकम्पनीड बाय अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। साथ में ये आया तो आया, बल्कि बहुत सारा पॉपुलेशन लेकर आया। So the second combined to make the growth rate of the per capita income very low. The failure at both the ends, promotion of economic growth and the population control perpetuated the cycle of poverty. Now, the second point which is given here is that spread of irrigation happened. The green revolution created opportunities, but it had an impact on a very small region, like in a very particular region like Punjab, Haryana. ठीक है? Many job opportunities were created in the agriculture sector, but effects were limited to some part of the India. The industries, both public and private sector, did provide some job, but these were not able to absorb all the job seeker, है ना? जो industries थी वो public private दोनों पर ही दी, बट इतना नहीं दी कि सारे सब जॉब सीकर्स को रख लें। सो अनएबल टू फाइंड, तो अब अगर ऐसे जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, अब जॉब नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अब जॉब नहीं मिलेगा तो इंसान छोटे-मोटे काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं रूरल हाउसहोल्ड फैमिली से, समझ लो, आई एम नॉट कमिंग टू एन अर्बन हाउस, आई हैव केम फ्रॉम एन अ वेरी रूरल हाउसहोल्ड, रूरल लैंडलेस हाउसहोल्ड, ठीक है? तो आई वाज़ लिविंग इन अ पॉवर्टी, बट नाउ आई केम टू दिस अर्बन पॉपुलेशन, है ना? तो बट इंडस्ट्रीज दोनों ही पब्लिक प्राइवेट में इतनी जॉब नहीं दे पाई कि मेरे को भी जॉब मिल जाए, है ना? तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं छोटे छोटे काम लाइक मैं छोटे काम करूंगा। अब जैसे मैं रिक्शा पुलिंग करा, वेंडर बना, कंस्ट्रक्शन वर्कर बना। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स तो सबसे लाइक इरेगुलर, या फिर उसके लिए एक टर्म होता था कि मैं भूल रहा हूँ वो टर्म एक्चुअली। तो वो तो सबसे ज़्यादा अन अनस्टेबल जॉब है ना, तो मैंने वो काम करना शुरू कर दिया। तो अब मेरे पास इतनी रेगुलर इनकम तो नहीं है कि मैं एक्सपेंसिव हाउसिंग में लगा पाऊँ, तो मैं अब स्लम में रहने लगूँगा, ठीक है? तो यही तो है ना, तो इसी के कारण तो एक जो रूरल फिनोमेना था मेरा, जो अब वो एक अर्बन फिनोमेना भी बन गया। दैट इज़ व्हाट द रीज़न वाज़, है कि नहीं?
तो पहला रीजन तो हमने दे दिया कि हिस्टोरिक रीजन था, इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल एंड लाइक जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने हमारा हैंडीक्राफ्ट डिस्करेज करा, डेवलपमेंट डिस्करेज करा, लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज बनी, लो ग्रोथ रेट रहा, which led to failure both the ends and promotion of economic growth and perpetuated the cycle of poverty. The second thing what we saw was that a green revolution happened. Many job opportunities created in agriculture sector, but effect were limited. Third option, what we see, a reason what we saw, the both the industries, some jobs they provided, both public private sectors, but इतने नहीं थे कि जॉब सीकर्स को satisfy कर सके. तो जॉब्स इन सिटीज, लाइक अब मेरे को प्रॉपर तो कुछ मिला नहीं जॉब्स इन सिटीज, तो मैं अब ऐसा छोटा मोटा काम करना चालू कर दूंगा, इरेगुलर इनकम होगा, और मैं एक्सपेंसिव नहीं कर, लाइक हाउसिंग, एक्सपेंसिव हाउसिंग नहीं ले पाऊंगा, स्लम्स में लग जाऊंगा मैं, और रूरल फिनोमिना एक अर्बन सेक्टर में भी आ गया. तो अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट हैज बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज, है ना. तो जो दूसरा फीचर है कि हाई पॉवर्टी रेट हैज बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी, है ना. मतलब हर एक दूसरे इंसान के बीच में बहुत ज्यादा लाइक इनकम इनइक्वालिटी है ना. तो इट इज अ मेजर रीजन फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, है ना. तो बहुत सारी पॉलिसीज लाई थी हमने जो कि इस इशू को टैकल करती, इशू को मीनिंगफुल मैनर पे. But major policies like land reform, which aimed at redistribution of assets in rural areas, have not been implemented properly. Sorry, have not been implemented properly and effectively by most of the state government. ठीक है, तो पूरी गलती स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो बहुत सारी पॉलिसीज़, तो अब ये पहले तो ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़ थी। अब इसका रीज़न ये था दैट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और बाकी रिसोर्सेज़ का। बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई हमने जो कि इस इश्यू को टैकल करती मीनिंगफुल मैनर पे, बट जो मेजर पॉलिसी थी लाइक लैंड रिफॉर्म व्हिच एम्ड एट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट एंड प्रॉपर्टी was not implemented properly and effectively by most of the state government. ठीक है, तो ये भी एक कॉज हो सकता है पॉवर्टी का कि इनइक्वालिटी, बहुत इनकम ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज है विच इज बिकॉज ऑफ लैंड. बहुत सारी पॉलिसीज लाई थी जो मीनिंगफुल मैनर पे इसको टैकल कर सकती थी, बट लैंड रिफॉर्म which aimed at redistribution of assets but could not be initiated properly by the state government, so we couldn't do anything. Now, so the next thing, since lack of land resources has been one of the major cause of poverty in India, proper implementation could have improved the life of millions of rural people. तो अगर ये पॉलिसी लाती तो अच्छा होता. ठीक है, अब देख लो. अब नेक्स्ट थिंग जो है, सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर. सो व्हाट डू यू मीन बाय सोशियो कल्चरल? तो सोशल कल्चरल तो मतलब सोशली जो तुम कल्चर होता है वो उस बेसिस पे है. ठीक है, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, वी विल सी द सोशल इकोनॉमिक सोशल कल्चरल मैनर फर्स्ट. सो व्हाट हैपेंस इन सोशियो, जैसे कि आई एम हिंदू, फॉर एन एग्जांपल आई एम हिंदू. सो अब मैं बहुत छोटे फैमिली से आता हूँ, तो अब बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दिवाली बना पाऊँ। बट ऐसा सोशल ऑब्लिगेशन है कि दिवाली पे नए अच्छे 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 कपड़े पहनते हैं. आई कुड नॉट मैनेज इट इन माय बिल्स, बट आई विल मैनेज इट माय बिल्स. यू नो व्हाई? बिकॉज़ इट इज़ अ सोशल ऑब्लिगेशन. So to fulfill the social obligation and observe the religious ceremony, people in India, including very poor, spend a lot of money. है ना? तो जो छोटा सा फार्मर है, उसको पता है उसकी इनकम मेगर है एंड ही कुड नॉट अफोर्ड इट, बट ही विल डू इट बिकॉज इट्स अ सोशल ऑब्लिगेशन, है ना. बहुत सारा मनी वो ऐसे ही दे देगा. तो ये हमारा सोशल कल्चरल रीजन है ना. अब हम देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स पे. तो कुछ स्मॉल फार्मर्स को पैसे चाहिए रहते हैं एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स एंड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के लिए. तो since poor people do not have any kind of savings, तो borrow करेंगे, फिर hardly so they will borrow but repay नहीं कर पाएंगे, तो indebtedness आ जाएगा. So they will become a
victim of indebtedness, or the high level of indebtedness is both the cause and the effect of poverty, है ना? तो ये अब cause भी हो सकता है indebtedness और इफेक्ट भी हो सकता है पॉवर्टी का। कौन क्या indebtedness। नाउ वी विल